Okay. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Myself, Pooja Trivedi from Spider Software Mumbai head office. Today the topic of the webinar is understanding averages. So, before starting with our webinar, I will just wait for a few seconds more, and after that, we will start our webinar. So, right now, I'm just hiding myself. So let us start with our webinar. So a very good morning to everyone. So today's topic of the webinar is understanding averages, a deep dive into technical conditions. So myself Pooja Trivedi and I'm a support executive at Mumbai head office. So many of us do know that what are averages, what are moving averages, how you can use in your trading life, right? But when like you want to create any scanner of like moving averages, so most of us we get confused that which condition should we use first, which condition, like if I want to find out a crossover of this average, or else I want to find out a crossover, downward crossover of the average, right? So most of us gets confused which condition should be used. So that's why the topic of today's webinar is to understand the conditions. Like most of us still we don't know that how we can use these technical conditions and create our own scanner, like create our own scanner of yourself, right? So we still don't know. So isko समझने के लिए specifically आज ये topic का we have selected this topic. So most of our clients will get clear कि ये condition जो रहती है, like जैसे we have conducted price OHLC, right? तो price OHLC में like what is downward, upward breakout, downward breakout, फिर like inside bar, outside bar. तो वैसे ही averages में भी there are many of our conditions जहाँ पे clients still confused हो जाते हैं कि where we have which condition which should we use right now, right? तो इसी के लिए आज webinar यहाँ पे है. तो अभी मैं slide को यहाँ पे forward करती हूँ. तो ओके तो फ्लो वेबिनार का जो फ्लो रहेगा ऑफकोर्स वैसे तो वी ऑल नो कि एवरेज क्या है, मोस्टली यूज एवरेजेस क्या है, राइट? बट स्टिल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा एवरेज की, व्हाट इज एवरेज, लाइक विच आर मोस्ट ऑफ द यूज्ड एवरेजेस लाइक ट्रेडर्स जो यूज करते हैं, एंड ऑल्सो लाइक टेक्निकल क्वेरी में हमारी कंडीशंस है, ओके तो उसको कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, एंड लाइक हाउ यू कैन यूज दिस इन योर ट्रेडिंग लाइफ, और आप अपने तरीके से स्कैनर बना सकते हो, तो वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. ओके तो अभी कंडीशन समझने से पहले we'll just understand a basic introduction of average, like moving average. तो as you can see, like slide open है, तो moving average क्या है? Like a moving average is a tool or indicator which is used in the market to help to smooth out a price range and shows the overall trend of a stocks, like price over the time. ओके लाइक मूविंग एवरेज को अगर आप बोल रहे हो लाइक एवरेज अभी नॉर्मली अभी समर चालू, लाइक एक एग्जांपल के तौर पे अभी समर चालू होने वाला है, राइट? तो आप यहाँ पे अज्यूम करते हो कि आज के दिन में यहाँ पे लाइक टेम्परेचर जो है गर्मी का लाइक 30 है, 32 है, तो यू जस्ट प्रेडिक्ट कि आने वाले दिनों में उसका क्या रह सकता है, राइट? तो ये जो मूविंग एवरेज है ना, लाइक हमारे मार्केट में भी वैसा ही काम करते हैं, इंडिकेटर बोलो या फिर टूल बोलो, वो भी ऐसे ही काम करते हैं कि जिसके जरिए लाइक आप कोई भी इनपुट लो, इधर लाइक अपना क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पे एवरेज पता लगा सकते हो, फिर यहाँ पे अपने ओपनिंग प्राइस के हिसाब से का एवरेज पता लगा सकते हो. उस हिसाब से हमें अंदाजा मिल जाता है कि मेरे यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस की या फिर इसकी क्या मेरी एवरेज रह सकती है. तो इस तरीके से आप यहाँ पे ज्यादातर लाइक एफिशिएंट आप यहाँ पे अपने स्टॉक्स को फोकस पे रखोगे, किस टाइम पे यू हैव टू लाइक टेक योर ट्रेड, और एल्स किस टाइम पे आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, क्या करना है, ये सब. तो इस तरीके से ये अपना जो है वो अपना एवरेज टूल है, या फिर टूल बोलो, इधर आप यहाँ पे अपना ये बोलो लाइक इंडिकेटर बोलो. और स्पाइडर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टडी बोलते हैं, तो स्टडी के लिए आपको लाइक यहाँ पे एस प्रेस करने के लिए, तो हाँ यहाँ पे हमारी सारी कंडीशंस इनेबल हो जाती है. ओके फिर अभी अगर हम अंडरस्टैंड करते कि अभी by averaging prices of some specific period, it reduces the short term ups and downs, makes it easier to see the bigger picture. As in कैसा कि अभी बहुत सारे indicators जो रहते हैं, right? Normally सब use करते हैं क्या है क्या नहीं, right?
तो लाइक इट्स नॉट अबाउट ओनली एवरेजेस, बट विच एवर इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं तो उसमें ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो आइडिया हमें मिलता ही है कि क्या होने वाला है, राइट। तो उससे उसके जरिए हमें एक अपना ये व्यू मिल जाता है कि मार्केट का मूवमेंट लाइक अभी अपकमिंग डेज में बोलो या फिर अपकमिंग लाइक इंट्राडे में बोलो कि कैसा रह सकता है, एवरेजेस बोलो या फिर नॉर्मली इधर यू आर यूजिंग RSI, इधर आप ADX यूज कर रहे हो या फिर लाइक अपना MACD यूज कर रहे हो, विच एवर यूजिंग। अभी तो लाइक वी हैव टेकन एवरेजेस के कंडीशंस का वेबिनार, ओके। तो ऐसा नहीं है कि लाइक क्रॉस हो रहा है तो तब भी मेरा यहाँ पे ट्रेड प्लेस होता है या फिर डाउनवर्ड क्रॉस होता है तो तब भी मेरा ट्रेड प्लेस बनता है, दैट इज नॉट ट्रू। अगर मतलब अगर कभी कभार हमारे जो मूविंग एवरेजेस रहते हैं या फिर कोई भी इंडिकेटर यू आर टेकिंग, राइट, तो वो जो रहते हैं अगर उसको हमें यहाँ पे लाइक समटाइम्स हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है लाइक अगर तो वो हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो वो उसकी तरह भी काम आ सकता है कि लाइक अगर मतलब प्राइस और नीचे जाती है तो हो सकता है कि मेरा जो मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो मेरा सपोर्ट की तरह एक्ट करके भी लाइक ऊपर मुझे थोड़ा मूवमेंट मिले, या फिर अगर मैं डाउन की तरफ जा रहा हूँ नेगेटिव मूवमेंट कैच करने के लिए, राइट, तो हो सकता है मेरा इसमें रेजिस्टेंस की तरह भी काम करे। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एवरेज का क्रॉस हो रहा है तब भी आप ये चीज करो वो चीज करो, समटाइम्स सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी हमारा जो ये मूविंग एवरेज है इट एक्ट्स, ओके। तो लाइक लाइक फिर नेक्स्ट स्लाइड है अपनी विच टाइप्स ऑफ एवरेजेस मोस्टली यूज, तो लाइक जो ज्यादातर यूज होते हैं तो उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है आने वाली स्लाइड में, पर उससे जंप करने से पहले आई जस्ट वांट एवरीवन टू मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ तो उसका आंसर करे। लाइक आप नॉर्मल ट्रेड करते हो तो मोस्टली कौन से ऐसे एवरेजेस है जो आप यूज करते हो अपने यहाँ पे ट्रेडिंग लाइफ में। तो जितने भी हमारे यूज लाइक अटेंडीज है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी एवरेज है या फिर अगर आप अदर्स यूज करते हो तो अदर्स में यहाँ पे आप सिलेक्ट करो। अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हो, राइट, सिंपल मूविंग एवरेज हमें लाइक वी यू ऑल्सो नो हमें भी पता है कि क्या रहते, बट कौन सा सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हो वो भी आप चैट बॉक्स में इनपुट करो कर सकते हो। इधर लाइक आप हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हो तो उसको सिलेक्ट करो, और एक्सपोनेंशियल में भी विच एवरेज यू आर यूजिंग ना तो वो सिलेक्ट करो। या फिर तीसरा हमारा है वेटेड मूविंग एवरेज है तो उसको यूज करते हो तो उसका कौन सा पीरियड है कौन से पैरामीटर्स है तो वो भी आप यहाँ पे इनपुट करो। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी हमारे अटेंडीज है, ठीक है, तो वो ज्यादातर ये जो पोल लॉन्च किया उनका क्वेश्चन करे तो ताकि पता चल जाए कि लाइक हमारे जो क्लाइंट्स है या फिर नॉट क्लाइंट्स ओनली लाइक जो भी ट्रेडर्स हैं तो वो ये हमारा कौन सा एवरेज यूज करते हैं, तो पता चल जाएगा कि ज्यादातर कौन सा एवरेज मोस्टली यूज्ड होता है हमारे ट्रेडिंग लाइफ में, ओके। ठीक है, तो आई थिंक मुझे मोस्ट ऑफ द आंसर्स मिल गया है। तो आंसर्स में लाइक where I am able to see almost all of the people are using exponential moving averages, right? तो अभी नेक्स्ट स्लाइड लाइक यही है कि लाइक मैंने तो लाइक आई हैव आस्क्ड यू ऑल ऑफ आवर क्लाइंट्स की विच ऑफ देम लाइक दे आर यूजिंग द अपना एवरेजेस, राइट, बट लाइक अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली जो और भी बहुत सारे टाइप्स है अपने एवरेजेस में, इट्स नॉट लाइक दिस ओनली टू, देयर आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइप्स, बट जो वाइडली यूज्ड क्लाइंट्स नहीं, आई मीन वाइडली यूज्ड ट्रेडर्स करते हैं ना तो दीज आर ओनली टू, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज विच इज SMA एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज AMA, ओके। तो लाइक वी डू नो कि ये क्या होता है, बट सिंस लाइक अभी हमें टेक्निकल कंडीशंस वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग आवर कंडीशंस दैट हाउ वी कैन क्रिएट, तो एक इसमें भी आई जस्ट एक्सप्लेन यू like normal introduction ki what are these simple moving average and what is this our exponential moving average, okay। simple moving average जो है ना it is basic like एक most basic type है moving averages का, wherein कैसा रहता है कि हमारे जो भी closing price आप ले रहे हो या फिर इधर आप ओपनिंग प्राइस ले रहे हो तो उसका जो भी हमारी वैल्यू है क्लोजिंग वैल्यू तो उसका कैलकुलेशन के हिसाब से एंड जितने भी हमारी क्लोजिंग जितने भी पीरियड का ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 5 पीरियड का आप यहाँ पे SMA ले रहे हो लाइक 5 डेज का क्लोजिंग प्राइस फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, तो 5 डेज का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लेके वो ऐड करता है एंड अल्टीमेटली इट डिवाइड्स
बाय दैट नंबर कि कितने पीरियड का वी आर टेकिंग, तो आपको एक नॉर्मल अपना एसएमए की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो सिंपल यही है एसएमए कि हमारा सिंपल मूविंग एवरेज क्या है। तो इसमें भी लाइक बेसिक टाइप है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको भी, ठीक है। और फिर ये क्या करता है कि 5 पीरियड का एवरेज कैलकुलेट करके इट गिव्स, तो लाइक जो फर्स्ट डे का जो अपना एसएमए था ना, तो उसको यहाँ पे एक्सक्लूड करके फिर नेक्स्ट डे पे यहाँ पे उसकी वैल्यू को इनपुट करके हमें एसएमए एंड ऑल ये बता देता है। ओके, अभी सेकेंड जो हमारा लाइक मोस्टली यूज्ड टाइप है ये है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज नोन एज मोस्ट पॉपुलर ईएमए। ओके, लाइक नॉर्मली 5, 9, 10, 20 पीरियड का यूज्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ईएमए अगर आप देखोगे तो एसएमए की तरह नहीं है कि ठीक है सारी अपनी जो क्लोजिंग इनपुट्स रहते हैं, राइट, तो उसका यहाँ पे हमें एवरेज बता देता है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज, तो ईएमए जो रहता है ना, तो वो भी डेटा को यहाँ पे हमें स्मूथ आउट करता है हमारे डेटा को। बट एसएमए का कैसा रहता है कि वो हम जितना पीरियड का ले रहे हैं उतना ही हमें इसका डेटा बता रहा है, राइट। बट ईएमए जो रहता है ना, तो मोस्टली जो अपनी ये रिसेंट प्राइसेस रहती है ना, रिसेंट करंट प्राइसेस, तो उसका ज्यादा वेट यहाँ पे दे करके हमें ईएमए की वैल्यू पता चलती है। ओके, तो ये है डिफरेंस लाइक सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का, ठीक है। तो अभी तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि ये क्या है करके। तो अभी लाइक मूविंग एवरेज क्लियर हो गया कि क्या है, मोस्टली कौन से एवरेजेस यूज्ड होते हैं, इट इज क्लियर, राइट। बट अभी हम लाइक आपको भी बताता हूँ, वी ऑल्सो नो कि क्या है, राइट। बट सिंस टेक्निक अभी एवरेजेस का यहाँ पे क्या कंडीशंस हमें बताती है हमारे स्पाइडर में, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, तो सिंस फर्स्ट कंडीशन जो है लाइक वेन एवर यू गो इन स्पाइडर एंड ट्राई आउट दिस अपना, ओके, तो फिर अभी मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बताती हूँ कि ये क्या कंडीशन है मेरी। ओके, तो अभी जैसे कि अगर पहले तो हम देखते हैं कि कोई भी आप एवरेज ले लो तो उसको चार्ट पे कैसे वी विल इनपुट। ओके, सिंपली यू हैव टू प्रेस एस, और एल्स आप व्हाट यू कैन डू जस्ट राइट क्लिक ऑन द चार्ट, एड स्टडी ऑप्शन। ओके, हियर क्लिक एज एवरेज इन ऑल टाइम फ्रेम्स, बिकॉज आपको यहाँ पे बार बार हर एक टाइम फ्रेम पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर में विच एवर यू आर टेकिंग तब वो ले सकते हो, जैसे मैंने बेसिक ही रखा है सिंपल, एंड यहाँ पे मैंने 20 पीरियड का ले लिया। ओके, आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस इंडिकेटर एंड आई जस्ट इंक्रीज इट्स थिकनेस एंड आई क्लिक ऑन दिस एड। ओके, तो ये देखो मेरा भी ये फिलहाल ऐड हो गया यहाँ पे मेरा एसएमए 20। ओके, so as you can see on the right hand side, this is our opening, high, low, close we are able to see, and also what is our average value. Okay, तो इस तरीके से you can plot your any of the averages or else any of the indicator on your chart. But since averages कैसे ऐड करते we know, but how we can create a technical scanner now? So we can just click on this query. I will click on this technical query and will select any of the window. Okay, and from here I will double click on this condition number 1, wherein we will take here as average. We'll click on parameters. पैरामीटर्स में सिंस जो चार्ट पे यू आर अप्लाइंग, राइट, तो S20 है, तो यहाँ पे भी पैरामीटर में यू हैव टू क्लिक ऑन 20, विच एवर टाइम फ्रेम्स यू फॉलो। ओके, ओके, अगर लाइक वंस यू सी ना, ठीक है, पैरामीटर में लाइक वेन एवर यू पुट योर कर्सर ओवर दैट एवरेज टाइप ना, एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस यू आर एबल टू सी, राइट। But which moving average you follow na, you can just change according to you. Okay, like if you follow EMA, then you can click here as E, or else if you follow SMA, then you can click here as S. Okay, so I have taken here as S20, which is simple moving average of 20 period. Okay, condition mein if you will go na, there are n number of conditions, ठीक है, wherein this is price cutting average upward, price cutting average downward, cut above average on nth peg bar, right? Like what these conditions are indicating, what are they highlighting, right? So if you want to understand now, so we will just understand by this PPT today. See, the first condition that we will be taking is price cutting average upward. I'll just click on this and I'll just
click here as add. Okay, so see price cutting average upward में basically क्या है कि if अगर हम जाते ना तो जो हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है ना, तो बेसिकली कैंडल की अभी मोस्ट ऑफ द जन यहाँ पे कंफ्यूज रहते कि कैंडल की बॉडी को वो क्रॉस करे तो तब जाके मुझे इंडिकेशन मिले, तो ये इसका काम नहीं रहता प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड का इफ विल सी ना, तो अगर हमारी क्लोजिंग प्राइस जो रहती है ना वो अगर क्रॉस करके इफ इट इज गोइंग अबव एंड हमारी मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर रही है, तो तब जाके आपको ऐसे स्टॉक्स फिल्टर आउट होके आते हैं. ओके, तो सब जन कंफ्यूज हो जाते कि कैंडल की बॉडी को क्रॉस करना चाहिए, तो प्राइस कटिंग एवरेज मतलब अपवर्ड का मतलब वो नहीं है. अपवर्ड का कैसा रहता है कि आप कौन से इनपुट को यूज कर रहे हो ना, तो दैट मैटर्स द मोस्ट. तो इनपुट में अभी यहाँ पे भी आई हैव टेकन हियर एज क्लोजिंग, तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि क्लोजिंग है, तो मेरी क्लोजिंग ये मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रही है ना, तो तब जाके मुझे यहाँ पे प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड का जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई होके बताए. इसमें लाइक कैंडल या फिर कैंडल की बॉडी के रिलेटेड कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ अपना क्लोजिंग प्राइस अगर हमारी एवरेज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो सिर्फ हमें उतना ही मिलता है. ओके, तो अभी मैं यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में जाती हूँ. ठीक है, अभी यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसको ऐड किया इधर. ठीक है, अभी रिलेशनशिप में आई जस्ट क्लिक किया है C1, यहाँ पे कंडीशन पे रिलेशनशिप पे टिक करा. ओके, एंड ये रिलेशन पे टिक करा. अभी एज यू कैन सी यहाँ पे आई जस्ट रन दिस वन कंडीशन ऑन Nifty 500 only. Okay, and I just run this condition. So now it is running, so we will be able to see all of the stocks which is satisfying this condition, that is our closing has given our above moving average line. Okay, अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस में देखो क्या हुआ है कि अभी आप अगर वैल्यू में देखोगे ना यहाँ पे, तो क्लोजिंग प्राइस को देखो एंड ऑल्सो एवरेज की वैल्यू को देखो, तो एवरेज की जो क्लोजिंग प्राइस है इट इज आर अबव लाइक अपने एवरेज की वैल्यू के हिसाब से लाइक कट करके ऊपर दिया है उसने, राइट. तो ये सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे फिल्टर होके मिल जाते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक लुकिंग ऑल ऑफ द अदर स्क्रिप्ट्स. लाइक एक एक स्क्रिप्ट्स को आप चेक करो, दैट इससे अच्छा यू कैन जस्ट अप्लाई दिस वन कंडीशन और यहाँ पे आप रन कर पाओगे उसको. नेक्स्ट आता है कोलपाल. कोलपाल में भी सेम देखो, लाइक पूरे निफ्टी 500 के स्टॉक्स में से देयर आर ओनली 2 स्क्रिप्ट्स से सेटिस्फाई करते हैं व्हिच वी डिडंट न्यू, राइट. तो सिंपली ये एक टेक्निकल कंडीशन के जरिए आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो इसको. ओके, तो आई होप ये प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड की कंडीशन क्या है लाइक आपको क्लियर हो गई है. ओके, सो अभी हम लाइक जैसे हमने अपवर्ड के लिए कंडीशन देखी, तो वैसे ही वी विल टेक अ क्लोजर लुक लाइक प्राइस कटिंग एवरेज डाउनवर्ड. ओके, यहाँ पे भी देखा है कि कट हुआ है, यहाँ पे भी देखा कि ऊपर की तरफ कट हुआ है, लाइक हमारी क्लोजिंग प्राइस एवरेज लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, राइट. तो यहाँ पे सेम अपोजिट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है. मतलब टेक्निकली कैसा कि हमारी जो क्लोजिंग प्राइस है मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करके क्लोजिंग उसके नीचे दे रहा है. ओके, तो सिंपली ये कंडीशन जो है विच इज प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड, वो ये हमें यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है. ओके, तो अभी हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आते हैं. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे अगेन मान लो मैं एवरेज क्लिक करती हूँ, ऐसे में 20 कंडीशन में सेम डाउनवर्ड. ओके, अभी सेम आई जस्ट टेक हियर एज C3 एंड अभी मैं यहाँ पे रन कर देती हूँ. ठीक है, तो जैसे देखो आरती आया, ये देखो आरती में भी क्या हुआ कि हमारी क्लोजिंग जो हुई है कैंडल की, ठीक है, उस पर्टिकुलर कल के दिन, तो इट इज आर बिलो आर एवरेज लाइन. ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉडी के नहीं रहता क्लोजिंग प्राइस और हमारी एवरेज की वैल्यू को कंपेयर करके देखोगे तो यू विल जस्ट गेट अ क्लियर आइडिया कि ये क्या इंडिकेशन दे रहा है. ओके, ये देखो एजस लॉजिस्टिक्स आया, राइट. फिर AI इंजीनियरिंग, अजंत फार्मा. ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स है जो हमें ये वाली कंडीशन में फिल्टर आउट होके मिले. ओके, तो आई होप ये दो कंडीशन यू आर क्लियर की व्हाट इट इज. तो आई जस्ट प्रोसीड नाउ विथ आवर नेक्स्ट कंडीशन विच इज
ओके तो अभी नेक्स्ट कंडीशन आई जस्ट प्रोसीड विच इज प्राइस कट अबव एवरेज ऑन nth बैक बार एंड प्राइस कट बिलो एवरेज ऑन nth बैक बार। अभी ये कंडीशन जो है मोस्ट ऑफ देम गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है। अभी इसमें देखो प्राइस कट अबव एवरेज ऑन nth बैक बार, लाइक सिंस वी नो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निकल क्वेरी दिस इज आवर 0th कैंडल, दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल, दिस इज आवर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। ओके तो अभी मान लो ऑन nth बैक बार मतलब क्या कि मेरा जो प्राइस है, ठीक है, तो वो वही बार पे कट हुआ है और उसके बाद जो मेरी प्राइस है वो मेरे मूविंग एवरेज से ऊपर ही है। तो अगर आप यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे हो तो ये क्या इमेज पे मुझे बता रहा है कि मेरा जो प्राइस है वो 0 1 2 सेकेंड कैंडल पे कट हुआ है एंड आफ्टर दैट इफ विल एबल आप इफ यू आर सीइंग तो उसके बाद मेरा जो ये एवरेज है, मेरी जो क्लोजिंग प्राइस है वो मेरे एवरेज के ऊपर ही है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार कट हुआ तो वैसा नहीं। अगर मान लो इफ यू वांट टू फिल्टर आउट द स्टॉक्स, राइट, कि अगर मुझे मेरे क्लोजिंग लाइक जो मेरे कैंडल की क्लोजिंग है वो लाइक कट तो भले 3-4 बार पीछे हुआ है बट उसके बाद भी कट होने के बाद भी वो मेरा एवरेज, मेरी जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर ही है, राइट। तो तब जाके यू कैन यूज दिस प्राइस कट अबव एवरेज ऑन nth बैक बार वाला फिल्टर। ओके तो ये आपको समझा ये कंडीशन क्या है, मतलब कि क्या कि कट तो पिछले वही बार में हुआ है बट उसके बाद भी अगर हम देखते हैं कि कट होने के बाद भी हमारी क्लोजिंग वो एवरेज के ऊपर हो रही है, तो ये यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश करता है। तो अभी मान लो हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं, ठीक है। मान लो कंडीशन 5 पे मैं क्लिक करती हूँ, एवरेज पैरामीटर में सेम एस और एवरेज पीरियड में 20, ठीक है। कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, मेरी प्राइस कट अबव एवरेज ऑन nth बैक पर। ओके फिर अभी मान लो यहाँ पे मैं 5 लेती हूँ और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3, मतलब कि क्या कि 0th कैंडल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके तो ये एक वाले कैंडल पे जिधर कट हुआ है ना तो वो मुझे दिखाई देगा एंड उसके बाद हमारा जो प्राइस है विच इज आर अबव एवरेज। ओके एंड अभी आई जस्ट run this condition on this relationship box. Okay तो C5 मैंने यहाँ पे इनपुट किया एंड अभी आई जस्ट रन दिस। ओके तो जैसे देखो आनंद राठी आया, इसमें देखो 0 1 2 3, तो जो मेरा एवरेज वो चेक कर रहा है ना वो ये बार पे चेक कर रहा है विथ और जो उसने कट किया है ना वो पिछले 3 बार के हिसाब से कट किया है। फिर ये देखो आइजैक, इसमें भी सेम, पॉलीकैब। ओके तो अभी मोस्ट ऑफ द जन यहाँ पे ये कंडीशन पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कट ऑन nth बैक बार ओनली एंड कट अबव एवरेज इन लास्ट n बार्स ओनली। तो दीज टू कंडीशंस आर नॉट फुल्ली सेम। यहाँ पे कैसे ना वी आर स्पेसिफाइंग दैट कैंडल नंबर ऑन nth बैक बार, मतलब कि वही कैंडल पे वो कट हुआ है। बट यहाँ पे अगर ये जो कंडीशन है वो भी हम आने वाली स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज दिस। ओके तो ये ऑन आपको क्लियर हुआ कि क्या है ये कंडीशन। ओके तो ये पिछले कितने भी बार में कट हुआ है बट अभी हमारा प्राइस जो है वो उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो वैसे ही सेम ये कंडीशन है तो उसकी अपोजिट कंडीशन हमारी क्या होगी, प्राइस कट बिलो एवरेज ऑन nth बैक बार। मतलब कि क्या कि पिछले कोई भी बार में कट हुआ है एंड यू आर स्पेसिफाइंग दैट कैंडल की थर्ड बार पे कट हुआ है, फोर्थ पे कट हुआ है, फिफ्थ पे कट हुआ है एंड उसके बाद जो है हमारी प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे ही है। ओके तो आपको क्लियर हुआ ये क्या है। तो अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर में बता देती हूँ कि ये क्या है, ठीक है। आई जस्ट क्लियर ऑल दिस कंडीशंस एंड अगेन इनपुट कंडीशन पे आई जस्ट डबल क्लिक, विल टेक हियर एज एवरेज पैरामीटर एंड हियर एस 20। कंडीशन में वी विल टेक प्राइस कट बिलो एवरेज ऑन nth बैक बार। ओके एंड अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम है नंबर ऑफ बार्स, मतलब पिछले 5 बार में जिधर ये हुआ है अपना क्रॉस तो मुझे दिखाई देगा, पर वो चेक किधर करेगा, वही बार पे करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या इनपुट किया है 3। ओके तो मान लो अभी मैं ये सेम कंडीशन रन करती हूँ C1, इस पे टिक करती हूँ एंड अगेन यहाँ पे मैं रन करती हूँ। तो जैसे देखो ACI आया, इसमें क्या हुआ 0
1 2 3 4 राइट एंड 5। तो ये देखो, ये मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई कि मेरी जो प्राइस है वो एवरेज के इधर क्रॉस हुई, और उसके बाद देखो नीचे ही था मेरा क्लोजिंग प्राइस, राइट। फिर देखो आलोक आया, तो देखो 0 1 2 3। तो ये बार पे देखो क्या जो मेरी क्लोजिंग है वो एवरेज के नीचे ही है, और कट किधर हुआ है वो पिछले 5 बार में, 5th बार पे, राइट। फिर ये देखो सीसीएल यहाँ पे कट हुआ, और ये कैंडल मुझे कहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वाले कैंडल पे मेरी जो प्राइस है वो ये नीचे ही है। ओके, तो आई होप ये कंडीशन आपको क्लियर हुई हो कि ये क्या है ऑन nth बैक बार, अबव nth बैक बार एंड बिलो nth बैक बार। ओके, तो अभी फिर मैं फॉरवर्ड करती हूँ आगे। अभी यहाँ पे देखो, ये नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है ये क्या है, प्राइस कट अबव एवरेज इन लास्ट 10 बार्स एंड प्राइस कट बिलो एवरेज इन लास्ट 10 बार्स। ओके, अभी as you can see यहाँ पे I have specified also कि number of bars 3 and on nth back bar 1। मतलब कि क्या कि जो मेरा वो बार पे चेक कर रहा है तो वो फर्स्ट बार पे ही चेक करे कि वो उसके ऊपर है, और पिछले भले आप 3 डाल रहे हो 5 डाल रहे हो, दैट डजंट मैटर। अगर वो कट हुआ है ना कोई भी बार पे, भले ये बार पे कट भी हुआ हो, इधर ये बार पे भी कट हुआ हो, तो फिर भी आपको दिखाएगा। मतलब कि क्योंकि कट भले 3-4 बार में किधर भी हुआ है, पर वो उसके अगर ऊपर है तो वो वही बार पे चेक करेगा। पिछली वाली कंडीशन में क्या था कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे कि वो बार पे कट हुआ है, बट ये वाली कंडीशन में क्या है कि किधर भी कट हुआ है और उसके बाद वो कैंडल पे इट इज आर अबव दिस एवरेज लाइन है, तो तब जाके आपको स्टॉक्स यहाँ पे फिल्टर होके मिलते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। अभी देखो कंडीशन 3 पे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ, यहाँ पे सेम आई जस्ट टेक एवरेज। पैरामीटर में सिंपल एवरेज पीरियड में आई चेंज इट इनटू 20 एंड कंडीशन में I will just take here as price cut above average in last n bars। जैसे सेम एग्जांपल मैं ही बताती हूँ, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बार्स मैंने लिया है 3 एंड ऑन nth बैक बार में 1। ओके, एंड अगेन यहाँ पे मैं आपको रन करके बताती हूँ कि क्या रिजल्ट है। तो C3 पे मैंने कंडीशन नंबर 3 पे इनपुट किया है, तो रिलेशनशिप में भी आई विल टेक हियर एज C3 एंड अभी आई विल जस्ट रन। तो जैसे देखो आरती आए, आरती में देखो 0 1, मतलब कि क्या कि ये कंडीशन, ये जो रिजल्ट है वो मुझे ये कैंडल पे स्पेसिफाई होके बता रहे कि एवरेज जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे ऊपर है एवरेज की लाइन से, बट पिछले कोई भी 3 बार में कट हुआ है ना तो फिर भी इट इज रिफ्लेक्टिंग। ओके, तो दोनों कंडीशन में बोथ ऑफ दिस कंडीशंस आर वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आपको अगर यूज करके देखना हो कि ये इन लास्ट 10 बार्स मुझे क्या बताना है, तो वो वही बता रहे कि अगर पिछले मान लो कोई भी बार हम यहाँ पे स्पेसिफाई करो ना, तो तब भी अभी देखो जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, इधर भी कट होके मिला, बट ये जो है हमारे एवरेज क्लोजिंग प्राइस है जो एवरेज की लाइन को क्रॉस करके ऊपर हमें क्लोजिंग दी, राइट, तो वो तो उसके ऊपर ही है, बट पिछले 3-4 बार में जिधर भी कट हुआ है ना तो वो भी इधर हमें रिफ्लेक्ट होके बताता है। ओके, ये देखो सेम 0 1, और पिछले 3 बार में जिधर भी कट हुआ है ना तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके बताता है। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये जो दोनों कंडीशन है विच इज ऑन nth बैक बार एंड इन लास्ट n बार्स। ओके, तो मोस्ट ऑफ जन पूछते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी, तो आई होप ये सेशन में आपको क्लियर हुआ हो कि व्हाट इज डिफरेंस बोलो या फिर ये क्या हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, तो आई होप आप सबको समझा हो कि nth बैक बार एंड ये क्या हमारा रहता है ऑन इन लास्ट n बार्स। ओके, तो अभी अगेन हम प्रोसीड करते हैं आगे। ओके, तो जैसे ये कट यहाँ पे हुआ है तो वैसे हमारे अपोजिट कंडीशन क्या रहेगी, बिलो एवरेज इन लास्ट 10 बार्स। मतलब कि क्या
कि वो ये बार पे चेक करेगा कि वो बिलो है कि नहीं, बट कंपैरिजन किससे करेगा, पिछले 3 बार से। मतलब कि क्या कि अगर 3 बार में किधर भी नीचे की तरफ क्रॉस हुआ है, ठीक है, भले आप 3 मेंशन कर रहे हो कि 4 मेंशन कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। अगर वो क्रॉस अपना ये कट हुआ है, ठीक है, तो तब भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके बताएगा। और वहीं पे अगर वो बार पे एंड पैक बार पे हमारा ये नीचे है, तो वो आपको अगर नीचे रह गई ना हमारी क्लोजिंग प्राइस एवरेज के हिसाब से, तो फिर भी हमें यहाँ पे रिजल्ट में बता देगी। ओके, तो मान लो अभी मैं यहाँ पे लेती हूँ कंडीशन नंबर 1, एवरेज पैरामीटर में यहाँ पे सिंपल रखा, यहाँ पे आई जस्ट टेक हियर एज 20 एंड यहाँ पे आई जस्ट टेक हियर एज प्राइस कट बिलो एवरेजेस। ओके, यहाँ पे मैंने सेम 3 रखा जो हमने एग्जांपल में लिए है, दैट इज नंबर ऑफ बार्स 3 एंड ऑन nth बैक बार आई विल टेक हियर एज 1। ओके, तो यहाँ पे आई जस्ट टेक C1, ठीक है, एंड रन दिस कंडीशन ऑन निफ्टी 500 ग्रुप एंड अभी आई एम जस्ट रनिंग इट। जैसे देखो एबीबी आया, एबीबी में देखो क्या हुआ है कि ये 0th कैंडल है, दिस इज आवर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। यहाँ तक अगर इफ यू आर सीइंग तो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है इट इज आवर अबव एवरेज लाइन, राइट। अभी पर वो स्पेसिफाई ऑन nth बैक बार मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो ऑन nth बैक बार में मतलब क्या कि ये कैंडल पे मुझे इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि ये स्पेसिफिक कैंडल पे वेदर मेरी क्लोजिंग प्राइस नीचे है एंड पिछले कोई भी बार में अगर वो कट हुआ है ना, भले मैंने 3 मेंशन किया, अभी देखो कट तो मेरे पिछले एक ही बार में, पर मैंने 3 मेंशन किया, पर देखो इसने एक ही बार में इट हैज कट, राइट, तो फिर भी वो मुझे यहाँ पे दिखा है। मतलब क्या है कि कट जिधर भी हुआ है दैट डजंट मैटर, बट अगर ये स्पेसिफिक कैंडल पे अगर वो मेरे मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे है ना, तो फिर भी इट विल गिव अ स्टॉक्स की कौन से ऐसे स्टॉक्स है। ओके, तो क्लियर हुआ आपको व्हाट इज दिस? ओके, तो अभी मैं अगेन यहाँ पे अपना नेक्स्ट कंडीशन प्रोसीड करती हूँ, विच इज आर प्राइस अबव एवरेज फॉर लास्ट 10 बार्स। अभी इसमें भी देखो सेम 3-1 का ही मैंने यहाँ पे लाइक रखा है, नंबर ऑफ बार्स 3 है, मतलब 0 1 2 3, मतलब पिछले 3 बार से जो प्राइस है मेरी मूविंग एवरेज से ऊपर ही है, बट वो चेक कौन से बार पे कर रहा है, फर्स्ट बार पे, ठीक है। तो मतलब मान लो इफ यू वांट टू फिल्टर आउट द स्टॉक्स की पिछले लाइक कोई भी बार में लाइक वो लाइक 3-4 बार में वो ऊपर है बराबर, बट वहीं पे लाइक चौथे कैंडल पे बोलो या फिर 5वें कैंडल पे बोलो, राइट, तो वो उसके नीचे है ना, तो आई मीन वो उसके ऊपर है ना, तो फिर भी आपको इधर रिफ्लेक्ट होके बताएगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये कंडीशन क्या है। जैसे कंडीशन 1 यहाँ पे एवरेज पैरामीटर, यहाँ पे मैंने अगेन 20 लिया, ठीक है। कंडीशन में यहाँ पे प्राइस अबव एवरेज फॉर लास्ट एन बार्स। अगर मान लो यहाँ पे मैं सेम जो एग्जांपल है मैं आपको उसी पे बता रही हूँ ताकि विल जस्ट नॉट गेट कंफ्यूज करके। ओके, तो यहाँ पे C1 and I'm just running this condition, मतलब it will basically give me the result on this candle with comparison to last 3 bars whether our price is above or not. Okay, सी आवाज में बेसिकली मैंने तो खाली 3 बार मेंशन किया, अगर वो पिछले से भी ऊपर होगा ना, पर वो 3 बार का ही अगर ऊपर है तो फिर भी आपको बताएगा। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ABFRL। इसमें भी देखो इट इज स्पेसिफाइंग द कंडीशन ऑन दिस स्पेसिफिक कैंडल विथ कंपैरिजन टू लास्ट 3 बार्स। ओके, इसमें भी देखो सेम, यहाँ पे मुझे बताया है कि प्राइस जो है मेरी एवरेज लाइन के ऊपर है और बाकी पिछले 3 बार से भी अगर हम देखते हैं तो प्राइस ऊपर ही है मेरे मूविंग एवरेज की वैल्यू से। ओके, तो आई होप दिस कंडीशन इज क्लियर टू यू। Okay, now I'll just forward again on the next condition which we are having is price below average for last 10 bars. यहाँ पे भी सेम है, लाइक इसके अपोजिट में लाइक अगर ये स्पेसिफिक कैंडल पे लाइक एग्जांपल में आई हैव टेकन हियर एज नंबर ऑफ बार्स मतलब 3 एंड nth बैक बार मतलब 1। ओके, तो इफ यू वांट टू फिल्टर आउट द स्टॉक्स की लाइक वो बार पे लाइक
मेरे क्लोजिंग जो है वो मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे ही है, बट नंबर ऑफ बार्स 3, मतलब पिछले 3 बार में जिधर भी हुआ है लाइक क्रॉस उसके नीचे हुआ है क्लोज, तो मुझे फिल्टर होके मिले। ओके, तो आई जस्ट अगेन show you the condition on this particular on our software. Okay, तो मान लो I'll just double click on this condition number 3. I'll take here as average parameter and average period is 20, and condition में I will take here as price below average for last n bars. Okay, यहाँ पे I will type here as 3 and check on nth back bar as 1. ओके, मतलब कि क्या कि ये बार पे इट विल चेक वेदर वो मेरे मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे है कि नहीं, और पिछले 3 बार से भी इट शुड बी बिलो। ओके, एंड यहाँ पे इफ आई टाइप हियर एज C3, अभी आई जस्ट रन दिस कंडीशन। ओके, तो जैसे देखो अबाउट में आया, अबाउट में देखो क्या हुआ है कि ये स्पेसिफिक कैंडल पे मेरी क्लोजिंग प्राइस देखो इसके नीचे ही है, एवरेज के नीचे, राइट। और पिछले 3 बार के हिसाब से देखते हैं तो इट द क्लोजिंग प्राइस जो है वो हमारे मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे ही है। ओके, तो ये जो कंडीशन है ना वो सिंपली आपको ये बताने की कोशिश करती है कि वो वही बार पे अगर आप मान लो अगर आपने नोटिफाई नहीं किया है ना कि ऑन nth पे एक बार, तो आपको वो करंट कैंडल 0 है तो करंट पे रन करके दिखाएगा। बट जैसे लाइक मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि मैंने 1 रखा है, तो 1 मतलब क्या कि ये बार पे इट विल चेक विथ कंपेरिजन टू लास्ट 3 to 4 बार्स। ओके, तो अभी मैं अगेन यहाँ पे फॉरवर्ड करती हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारी हाँ स्लाइड है, इट इज राइजिंग फॉर लास्ट एंड बार्स। राइजिंग मतलब टेक्निकली कैसा कि इट्स नॉट टेकिंग क्लोजिंग प्राइस, हमारी जो एवरेज वैल्यू है ना अगर वो राइज कर रही है, राइट, तो मुझे यहाँ पे अपने इसके हिसाब से बताता है। ओके, मतलब अगर आप देखो फर्स्ट यहाँ पे देखोगे तो क्या मेरी एवरेज वैल्यू 1 लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताए कि एवरेज वैल्यू इट इज 123.10, फिर नेक्स्ट कैंडल पे 120 है, फिर 125 है, 125.46, फिर 126.02। तो अगर आप प्राइसिंग फॉर लास्ट एन बार्स मतलब 3-4 बार रख रहे हो उसको बराबर, और आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो कि अगर वो एवरेज वैल्यू जो है मेरी बढ़ते ही जा रही है, कोई भी स्टॉक जो है वो मुझे फिल्टर होके मिले, तो तब जाके आप यहाँ पे राइजिंग फॉर लास्ट एन बार्स का यूज कर सकते हो। ओके, मतलब कि ये स्पेसिफिक एवरेज वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो अभी मान लो मैं आपको सॉफ्टवेयर में बता देती हूँ कि कैसे हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो C4 पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे एवरेज पैरामीटर, यहाँ पे सिंपल एंड एवरेज पीरियड में 20। ओके, कंडीशन में मान लो आई विल टेक हियर एज राइजिंग फॉर लास्ट n बार्स एंड यहाँ पे मान लो 5, ठीक है, और चेक ऑन nth back bar 1, मतलब ये मैंने ये स्पेसिफिक कैंडल पे रखा है विद कंपैरिजन टू लास्ट 5 बार्स। ओके, एंड यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया अभी, तो C4 एंड आई विल जस्ट रन दिस कंडीशन नाउ। ओके, तो देखो सेम, मतलब 4 बार में अगर वो बढ़ रहा है तो वो तो मुझे शो करेगा ही यहाँ पे, भले पहले से बढ़ रहा है दैट डजंट मैटर, बट हाँ पिछले 4 बार में अगर वो मेरे मूविंग एवरेज की प्राइस बढ़ते जा रही है और ये स्पेसिफिक बार से ऊपर ही है, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके के स्टॉक्स फिल्टर होके बताएगा। ओके, ये देखो, तो आई होप ये कंडीशन क्लियर हुई हो कि ये क्या है। अभी नेक्स्ट अभी हम आते हैं तो फॉलिंग फॉर लास्ट एन बार्स। तो फॉलिंग फॉर लास्ट एन बार्स मतलब क्या कि मेरी जो एवरेज वैल्यू है, भले कैंडल ग्रीन हो रेड हो उसमें कोई मतलब नहीं है, अगर मेरी एवरेज वैल्यू गिरते जा रही है तो मुझे ऐसे स्टॉक्स फिल्टर होके मिले पिछले 10-15 लाइक आप कोई भी बार यहाँ पे चूज कर रहे हो। ओके, तो मान लो सेम मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कंडीशन नंबर 6, एवरेज पैरामीटर यहाँ पे S एंड एवरेज पीरियड में 20। ओके, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करती हूँ तो फॉलोइंग फॉर लास्ट 10 बार्स, ठीक है, एंड यहाँ पे 1। तो C4 की बजाय अभी मैं कौन सी कंडीशन रन करूंगी, C6। ओके, एंड अगेन आई जस्ट रन दिस कंडीशन। तो ये देखो
तो ये बार पे इट इज चेकिंग कि फॉल हो रहा है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5। ओके, तो पिछले 5 बार से मेरा जो मूविंग एवरेज की वैल्यू है ना वो गिरते ही जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंट्रोल डी करके आई जस्ट टेल यू, सी दिस इज आवर मूविंग एवरेज का, यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है कि क्या वैल्यू है। तो ये बार पे देखते तो 89.15 है, फिर ये बार पे देखते तो 09.08 है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25.76 है। ओके, तो इस तरीके से मान लो अगर आपको स्टॉक्स फिल्टर होके चाहिए ना, तो तब जाके यू कैन यूज दिस वन कंडीशन। ओके, तो लाइक अभी तक की जितनी कंडीशंस हुई है तो उनमें से नहीं, बट लाइक मैं सेकंड पोल लॉन्च कर रही हूँ कि जिसमें से आप लाइक मोस्टली यूज तो करते ही होगे कि कैसे स्कैनर हम बनाते हैं, राइट। बट सिंस अभी तक का जितना भी आपने यूज किया है तो उनमें से मैं लाइक सिंस एक पोल लॉन्च करना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो पोल क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोल लॉन्च करती हूँ कि इफ आई वांट टू फिल्टर आउट द स्टॉक्स की जो दैट आर 5% अबव द एवरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी यूजिंग। ओके, तो आपके हिसाब से जो आपको सही लगे, मतलब जो आपको लगे कि ये कंडीशन यूज हो सकती है, तो आप मुझे प्लीज यहाँ पे बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको लाइक अच्छा तो मतलब फिर सेशन बराबर है आज का जो हुआ है, या फिर तो मतलब इसमें हमें भी क्लियरेंस मिल जाएगी कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स है या फिर जितने भी यूजर्स है, राइट, तो वो ये टेक्निकल क्वेरी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंडीशंस क्या बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पोल लॉन्च किया है, तो जितने भी हमारे यूजर्स हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मेरा ये है पोल मैंने लॉन्च किया है कि मुझे अगर स्टॉक्स फिल्टर आउट होके चाहिए कि 5% से ऊपर है मेरे एवरेज से बराबर, तो विच कंडीशन आई विल यूज, प्राइस बिलो एवरेज बाय x% यूज करूंगी, कि प्राइस अबव एवरेज विद इन x% यूज करूंगी, या फिर प्राइस बिलो एवरेज विद इन x%। तो इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है जो मुझे चाहिए कि 5% के स्टॉक जो मेरे एवरेज के ऊपर ही है तो वही मुझे शो करे। ओके, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जन का आई हैव गॉटन एन आंसर, तो जो कि है प्राइस अबव एवरेज बाय x%। तो दैट इसका मतलब है कि यू आर यूजिंग एंड ट्राइंग टू मेक आउट योर ओन स्कैनर अपने टेक्निकल कंडीशंस के हिसाब से। तो आपका आंसर लाइक बराबर था कि जो हमारा एवरेज यूज्ड होता है मोस्टली, ठीक है, तो लाइक मुझे मेरे एवरेज के हिसाब से 5% ऊपर वाले स्टॉक्स फिल्टर होके चाहिए, तो तब जाके मैं ये कंडीशन यूज कर सकती हूँ, प्राइस अबव एवरेज बाय x%। ओके, तो मान लो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, देखो प्राइस अबव एवरेज बाय x%, यहाँ पे एग्जैक्ट डिफॉल्ट में जो है लाइक 2% है, तो वही मैंने शो करा है। मतलब कि क्या कि मेरी अगर ये मुझे क्या कंपेयर होके बता रहा है कि जो मेरी क्लोजिंग है कैंडल की, ठीक है, और जो मेरे एवरेज की वैल्यू है, तो मुझे वो 2% से ज्यादा मान लो रखा है आपने, 5% से ज्यादा रखा है, तो वो अगर वो परसेंट से ऊपर होगा ना, तो वो स्टॉक्स आपको इसमें स्कैन होके मिलेगा, लाइक जब वेन एवर यू विल यूज दिस कंडीशन प्राइस अबव एवरेज बाय x%। ओके, तो मान लो लाइक मेरे एवरेज से 5% ऊपर है या फिर मेरे इससे 5% ऊपर है क्लोजिंग से, राइट, तो तब जाके आप ये कंडीशन जो है वो यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर में बता देती हूँ कि ये कंडीशन को आप कैसे यूज करोगे। तो मान लो कंडीशन नंबर 8 पे आई हैव जस्ट डबल क्लिक्ड, यहाँ पे एवरेज, ठीक है, पैरामीटर में सेम 20, एंड कंडीशन में आई विल जस्ट टेक योर एज प्राइस अबव एवरेज बाय x%। तो ये 2% है और यहाँ पे मैंने मान लो 0 रख रही हूँ अभी। ओके, तो C6 एंड C8। अभी मैं इसको निफ्टी 500 के ग्रुप में, ठीक है, काम करते विल जस्ट टेक 5% ओनली कि क्या है, एंड तो फिर मतलब पता चलेगा। तो आई एम रनिंग दिस कंडीशन नाउ, तो जैसे देखो अदानी आया, अभी अगर आप देखोगे तो ये जो कंडीशन है ना मेरी, तो वो क्लोजिंग और एवरेज का अगर मेरा ऊपर है लाइक 5% से ज्यादा ऊपर है ना, तो मुझे ये स्टॉक्स फिल्टर होके मिले हैं टोटल 64 स्टॉक्स। तो जैसे बलराम चीन, ये देखो 5% से ज्यादा ऊपर है, तो वो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके बता रहे हैं। ओके, बट इनपुट में आप ये लाइक कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ ऊपर है क्या ऊपर है, आप क्लोजिंग को देखो यहाँ पे, क्लोजिंग
एंड एवरेज की वैल्यू को देखो, अगर वो ज्यादा ऊपर है लाइक 5% से ऊपर, तो आपको ये स्टॉक्स फिल्टर होके मिलेंगे इधर। ओके, ये देखो गेल, फाइन ऑर्गेनिक्स, कोरोमंडल, ठीक है। तो आई होप ये कंडीशन क्लियर हुई है कि ये क्या है। तो जैसे हमने अबव एवरेज बाय x% देखा, तो वैसे ही हमारे पास क्या है, प्राइस बिलो एवरेज बाय x%। मतलब क्या है कि मेरी जो प्राइस है, अभी प्राइस में आप यहाँ पे जो भी इनपुट प्रेफरेंस को दे रहे हो ना, वो मैटर करता है। मतलब आप क्लोजिंग प्राइस को ले रहे हो कि आप ओपनिंग प्राइस को ले रहे हो कि क्लोजिंग को ले रहे हो कि हाई को ले रहे हो, इधर लो को ले रहे हो। अगर प्राइस में आपने क्लोजिंग रखे तो वो क्लोजिंग को ही कैच करेगा। अगर मेरा क्लोजिंग जो है एवरेज से 5% ऊपर है, 4% नीचे है, तो वो मुझे यहाँ पे फिल्टर होके मिलेंगे ये कंडीशन से। ओके, तो मान लो यहाँ पे कंडीशन नंबर 10, यहाँ पे एवरेज पैरामीटर एंड एवरेज पीरियड में 20, ठीक है। और यहाँ पे आई विल जस्ट टेक हियर एज प्राइस बिलो x%, और यहाँ पे आई विल टेक हियर एज 5 एंड एड, ठीक है। C8 की बजाय नाउ आई विल रन दिस कंडीशन नंबर 10, ठीक है। एंड अगेन मैं इसको रन करती हूँ, तो देखो आईक्यूम्स आया। आईक्यूम्स में देखो ये क्लोजिंग प्राइस देखो विच इज फार मोर बिलो देन आर एवरेज की वैल्यू के, और वो भी और 5% नीचे है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो 1 पॉइंट से भी हमें एवरेज वैल्यू मैटर करेगा ना, तो फिर भी इधर इट विल गिव अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप ये मत समझे कि ये कहाँ 5% है, ये कहाँ, ये तो इससे भी ज्यादा होगा। तो अगर वो नीचे है 5% से, तो आपको इधर ये कंडीशन के हिसाब से रिफ्लेक्ट होके मिलेगा। ओके, अभी नेक्स्ट कंडीशन पे अगर मैं प्रोसीड करती हूँ, तो क्या है, विच इज प्राइस अबव एवरेज विद इन x%। मतलब क्या कि मेरी जो क्लोजिंग प्राइस हो रही है, ठीक है, तो वो एवरेज के तो ऊपर ही होनी चाहिए, बट जो हो रही है वो मेरे ये रेंज में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5% लिया है मैंने, तो सेम मैं आपको 5% में अपने सॉफ्टवेयर में बता देती हूँ। तो कंडीशन नंबर 12 पे डबल क्लिक, यहाँ पे एवरेज पैरामीटर, और यहाँ पे मान लो S20, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी अगेन ले लेती हूँ प्राइस अबव एवरेज विद इन x%, और यहाँ पे मैंने 5 लिया, ठीक है। तो 5% रखा मैंने ये कंडीशन पे, और अभी कंडीशन नंबर 12 में रन करती हूँ निफ्टी 500 के ग्रुप में। ओके, तो C12 एंड ये मैंने रन किया, तो देखो क्या आया कि मेरा जो क्लोजिंग है, भले ये रेड कैंडल है, बट स्टिल क्लोजिंग जो है मेरे कैंडल की, तो वो मेरे एवरेज के तो ऊपर ही है। बट ये जो क्लोजिंग हुई है वो मेरा ये रेंज स्पेसिफाई कर रही है, ठीक है, कि वो 5% के अंदर ही हुई है उसकी क्लोजिंग, वैसा एवरेज के कंपैरिजन में। ओके, फिर ये देखो ACC, इसमें भी सेम क्लोजिंग को देखो, और ये अपने एवरेज की वैल्यू को देखो। यहाँ पे क्या है कि जो इसकी क्लोजिंग हुई है एवरेज के तो ऊपर ही हुई है, बट जो क्लोजिंग हुई है वो 5% के अंदर हुई है, विद इन अ रेंज, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्टॉक्स फिल्टर होके चाहिए कि जो ये लाइक इतने मेरे परसेंट से अंदर हुई है या फिर इतने परसेंट से ऊपर हुई है, तो तब जाके आप हमारी ये कंडीशन यूज कर सकते हो, विच इज प्राइस अबव एवरेज विद इन x%। ओके, अभी नेक्स्ट सेम यही कंडीशन, लाइक इसकी अपोजिट कंडीशन है, विच इज प्राइस बिलो एवरेज विद इन x%। ओके, मतलब कि क्या कि क्लोजिंग तो उसके एवरेज के नीचे हुई है, पर अगर एवरेज के नीचे हुई है तो वो भी 5% के अंदर हुई है, ठीक है। तो ये सिंपली ये जो कंडीशन है ना, विद इन x%, विद इन अबव एवरेज विद इन x% एंड बिलो एवरेज विद इन x%, तो वो सिंपली हमें ये बताने की कोशिश करती है। ओके, तो मान लो मैं सॉफ्टवेयर में जाती हूँ अगेन, एंड आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस कंडीशन। एवरेज में यहाँ पे एवरेज पैरामीटर, एवरेज पीरियड में यहाँ पे मान लो मैंने 20 लिया, एंड इधर मैंने यहाँ पे ले लिया प्राइस विद इन x%। ओके, और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। तो अभी कंडीशन नंबर 14 आई विल जस्ट रन एंड विल जस्ट चेक आउट ऑल द रिजल्ट्स। ये देखो अभी इसकी क्लोजिंग प्राइस देखोगे एंड अल्टीमेटली द एवरेज वैल्यू, तो क्लोजिंग तो उसके हमारे एवरेज से नीचे ही हुआ है, बट स्टिल वो मेरा 5% के अंदर ही रेंज में हुआ है।
Tejas Logistics, ये देखो AI इंजीनियरिंग, ओके, अजंता फार्मा, अल्केम, ठीक है। तो लाइक बहुत सारे लाइक मोस्टली जो यूज्ड कंडीशंस है जो नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं, तो वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको लाइक कोई भी डाउट्स हो इधर रिलेटेड टू दिस वेबिनार, या फिर कोई कंडीशंस के रिलेटेड डाउट हो, इधर लाइक एनी ऑफ द डाउट्स यू आर हैविंग, तो आप कमेंट में डालिए तो हम वो क्लियर करेंगे। या फिर नेक्स्ट कौन सा वेबिनार चाहिए, किस बेसिस पे लाइक वी कैन टेक अ वेबिनार, तो उसमें भी यू कैन जस्ट गिव योर फीडबैक। मोस्ट ऑफ द लाइक क्लाइंट्स का ऐसा रिकमेंडेशन था कि लाइक जैसे प्राइस OHLC का हुआ है, लाइक ये कंडीशन क्या बताना चाहते हैं, तो वैसे एवरेजेस का भी अगर कुछ रेफरेंस होता तो हमारे लिए इजी हो जाता। तो आज का वेबिनार उसी पे ही था। तो अगर आपको कोई भी डाउट से रिलेटेड टू कंडीशंस हो या फिर इधर एनीथिंग, तो वो आप पूछिए, तो हम क्लियर कर देंगे वैसा। तो अभी जैसे वी आर जस्ट एंडिंग आवर वेबिनार इन फ्यू सेकेंड्स, तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये वेबिनार से कि ये कंडीशंस क्या है, क्या एवरेजेस होते हैं, कौन से एवरेजेस मोस्टली यूज्ड होते हैं। तो आई होप आप इसको बार बार रेफर करो अपने स्कैनर को बनाने के लिए। एंड ऑल्सो लाइक कोई भी डाउट हो इधर लाइक इस वेबिनार के नहीं, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी, तो यू कैन रीच आउट टू अस। एंड आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे सपोर्ट के लैंडलाइन में, जो विच इज 022-350-18383। एंड इधर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8976991601 एंड 02। इधर ये हमारा सपोर्ट का मेल है, तो आप उस पर भी एक मेल ड्रॉप कर सकते हो, तो हम हमारे एंड से रीच आउट करेंगे आपसे। ओके, तो आई होप वेबिनार क्लियर, आज का सेशन क्लियर हुआ हो। एंड थैंक यू सो मच आपने यहाँ पे अटेंड किया आज के वेबिनार को। थैंक यू सो मच।